Dada, Afzal akam qo'lga tushishga yordam berdilar. Sodiq boy xotinini Yo'q. kuyovingiz bo'ladilar. Kishlarga ham xabar berib, Barakat emas. Kuyovim o'zi yomon bo'lib o'rtamizda topsin. Qizim. mayli dada. Gaplashmaganimiz ma'qul. O'zimniki qalbimda yig'ilib yotgan ming avval og'riqlar ko'p. Sizga bu bering. Nima pishirib bersang yeyveraman. Farqi yo'q. Bo'ldi. Faqat sharti birga o'tirib ovqatlanasak, yonimda kimdir bo'lmasa. Masalan, ovqat ham o'tmayapti. Dadajonim, siz yaxshi ko'radigan dimlam o'zimmi? Mayli. Boshladim. Turgan bitgan. Voy. Hali ishingiz minnat-a? Deysiz-a? O'shandagi sohi. Ilohim o'sha kunlar kelmadi. Yaxshilab minnat qilib beraman. Instagramda bundoq tan olishni ham bilish kerak. Hamma blogerlarning odam deganicha katta narsa sovg'ini erlari qilishyapti. Ularni qiladigan ishi piya. Ular qilasan. Soxta munosabatni nima qilagin? Ajrashib yot. Qara, hammasini qara. Ularni siz ham kuzatasizmi ular? Kuzatmayman, o'zi chiqib qoladi-yu. Dunyo sen seni tog'ang emas. Men Indamadi. gandim. Men hozir urib o'ldirsa kerak deb o'ylagandim. Shunaqa qilganimizda bormi? Agar biz bo'lardi. O'ldirib qo'ygan. Menimcha nimanidir o'rganmoqchi. Rostdan ham bundan Nimani ham qo'llaydigan chiqqanda ishlatadi. Tushunarli. Menimcha uslublarni o'rganyapti-da. Endi bu Pishilamalaring. Menga o'sha boylarni ro'yxati kerak. Kerak. Senda bormi? Qo'rqma. Ha? Pulini beraman. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल काचर की एक और आने वाली न्यू एपिसोड के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में बहुत सख्त कैद पड़ गया। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। हर तरफ मायूसी और नाउम्मीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के खात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान इनमें एक तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए और वो इस गले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौका से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर दें। इन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हो सका।
تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے وہ غلے لوگوں میں مفت بانٹ دیے۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے کی ایک شاخ بنو امی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کاچر کی ایک اور آنے والی نیو ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بہت سخت قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، ہر طرف مایوسی اور نام امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران ان میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو دوگنی قیمت کی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نہ ہو سکا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے وہ غلے لوگوں میں مفت بانٹ دیے۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے کی ایک شاخ بنو امی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کاچر کی ایک اور آنے والی نیو ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بہت سخت قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، ہر طرف مایوسی اور نام امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران ان میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو دوگنی قیمت کی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نہ ہو سکا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے وہ غلے لوگوں میں مفت بانٹ دیے۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔
अब रज़ी अल्लाह अन्हो का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से की एक शाख बनु उम्मी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल काचर की एक और आने वाली न्यू एपिसोड के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हो की बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में बहुत सख्त कैद पड़ गया। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हर तरफ मायूसी और नाउम्मीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के खात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान इनमें एक तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए और वो इस गले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौका से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर दें। इन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हो सका। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन गले के मालिक ने फिर कहा, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? इसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना देता है। ये कह के इसने वो गल्ले लोगों में मुफ्त बांट दिए। मदीना मुनव्वरा से कैद दूर हो गया और लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो थे। हज़रत उस्मान ने रज़ियल्लाहु अन्हो में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अब रज़ियल्लाहु अन्हो का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से की एक शाख बनु उम्मी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल काचर की एक और आने वाली न्यू एपिसोड के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हो की बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में बहुत सख्त कैद पड़ गया। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हर तरफ मायूसी और नाउम्मीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के खात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान इनमें एक तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए और वो इस गले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौका से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर दें। इन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हो सका। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन गले के मालिक ने फिर कहा, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? इसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना देता है। ये कह के इसने वो गल्ले लोगों में मुफ्त बांट दिए। मदीना मुनव्वरा से कैद दूर हो गया और लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो थे। हज़रत उस्मान ने रज़ियल्लाहु अन्हो में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अब रज़ियल्लाहु अन्हो का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से की एक शाख बनु उम्मी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल काचर की एक और आने वाली न्यू एपिसोड के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हो की बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में बहुत सख्त कैद पड़ गया। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हर तरफ मायूसी और नाउम्मीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के खात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान इनमें एक तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को
पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए और वो इस गले को खरीदना चाहते थे ताकि मौका से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर दें। इन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हो सका। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन गले के मालिक ने फिर कहा, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? इसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना देता है। ये कह के इसने वो गल्ले लोगों में मुफ्त बांट दिए। मदीना मुनव्वरा से कैद दूर हो गया और लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो थे। हज़रत उस्मान ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हो में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से की एक शाख बनु उम्मी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल काचर की एक और आने वाली न्यू एपिसोड के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि एक बार मदीना मुनव्वरा